We have also started the how to find out the deductions while finding out the quantity of brickworks. ठीक है ना? We have already covered in previous lectures how to find out the quantity of brickwork. तो ये quantities सबने सबको समझ में आया था in previous lectures में how we have calculated the quantity of brickworks. Yes. Whether everyone have understood how we have calculated the quantity of brickwork. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So in today's lectures, somewhat different quantities we will calculate by again the same method as long wall short wall methods. So directly we will start the problems. So here there is a three-room plan is there, kitchen, bedroom, and living room, with a section which has been provided. But in today's lectures, we will find out the quantity of RCC slab. Okay, now we will find out the quantity of RCC slab. So how to find out the quantity of RCC slab? So first, it will be we will find out the quantity of RCC slab depending upon the section, plan and sections. Okay. So there is a three-room plan is there, and the section is given, and with the help of a plan and sections, we will first find out the length in which directions we have to find out the quantity of RCC slab. ठीक है ना? तो सबसे ऊपर में देखो RCC slab लिखा है, ठीक है ना? RCC slab, it is having a ratio of 1:2:4. What about the thickness of RCC slab? Yes, what is the thickness of RCC slab? What is the thickness of RCC slab? Slab की thickness कितनी है? Yes, what is the thickness of RCC slab? बताओ, am I audible? What is the thickness of RCC slab? कितनी थिकनेस है आरसीसी स्लैब की? 150 mm. 150 mm. Yes, anyone beyond this? What is the thickness of RCC slab? Kalyani, Pooja, Priyanka, RCC slab? 150 mm. Yes, 150. yes. So it has been mentioned in the sections. So what is the thickness of RCC slab? It is 150 mm. Okay. So we have to find out the quantity of RCC. What is the how in which that is the mode of measurement क्या रहेगा? RCC slab कहीं में measure होगा बताओ? It will be measured in M cube. yes cubic meters or m cube. So RCC slab will be measured in the meter cube. ठीक है ना? मीटर क्यूब में क्या फाइंड करना पड़ेगा अपने को कि जो भी रूम के ऊपर में जो भी स्लैब डाल रहे हैं आप, जैसा किचन के ऊपर में स्लैब आएगा, बेडरूम के ऊपर आएगा और लिविंग रूम के ऊपर में स्लैब आएगा, ठीक है ना? तो ये तीनों रूम्स के ऊपर में स्लैब होगा। अगर आप देखते होंगे साइड पे, तो स्लैब विल रेस्ट ऑन आउटर वॉल्स, ठीक है ना? जो वॉल्स रहते हैं अपने पास, जो एक्सटर्नल वॉल्स रहते हैं पूरे बिल्डिंग के, तो ये पूरे बिल्डिंग के एक्सटर्नल वॉल्स पे अपना स्लैब रेस्ट होता है, ठीक है ना? So first we have to find out the length of that slab, then we have to find out the width of that slab, and 150 is the thickness which is already given in the section. तो एक चीज तो given है कि 150 section में given है कि 150 उसका thickness है, but length and width to be calculated as per plan. Length and width to be calculated as per plan, ठीक है? तो अभी क्या करना है आपको कि first we have to find out the length. अब देखेंगे आप ये फिगर जो है समवॉट एल शेप का है, थोड़ा सा एक अलग शेप में है फिगर्स, ठीक है ना? तो ये अलग शेप में है, तो ऐसा कन्वीनियंट वे से डिवाइड करो सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्लैब, ठीक है ना? एरिया ऑफ स्लैब आसानी से निकाल सकते हैं अपन, ऐसा कुछ उसमें डिवाइड कर दो। तो ऐसा डिवाइड करने के लिए अपन क्या कंसिडर करो कि किचन और बेडरूम देखो ऊपर में एक लाइन में आ रहा है, तो वी विल कंसिडर दिस अपर साइड एज वन एरिया एंड दिस लिविंग रूम जो नीचे में है द सेकेंड एरिया, ठीक है ना? तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस अपर, दैट इज द किचन और बेडरूम का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे अपन, और फिर लिविंग रूम का एरिया फाइंड करेंगे, और फिर देन मल्टीप्लाइड विद द थिकनेस टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ दैट इज आरसीसी स्लैब, ठीक है? तो ऐसे मतलब अगर प्लान है तो उसको डिवाइड करो कन्वीनियंट वे में, रेक्टेंगल्स में डिवाइड करो, स्क्वायर्स में डिवाइड करो, सो दैट कैन इट कैन बी इजीली फाइंड, वी कैन इजीली फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ आरसीसी स्लैब, ठीक है? तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब ऊपर में देखो किचन और बेडरूम है, ठीक है? अब किचन के और बेडरूम में
किचन के लेफ्ट साइड में एक है वॉल जिसका थिकनेस है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वॉल, इट हैज बीन गिवन अगेन इन द सेक्शन इज 230 थिक बीबी मेसनरी, दैट इज द ब्रिक मेसनरीज, ठीक है ना। तो ये जो है 230 जो थिकनेस है, वो किचन के लेफ्ट साइड में एक वॉल आ रही है, किचन और बेडरूम के बीच में एक वॉल आ रही है, और बेडरूम के लास्ट में एक वॉल आ रही है। दैट मीन्स अगर मैं लेंथ निकालता हूँ एक्स डायरेक्शन में अगर वो एरिया निकालता हूँ, उसके लिए जो लेंथ रिक्वायर्ड होता है, तो वो लेंथ निकालने के लिए क्या क्या एडिशन करना पड़ेगा मेरे को। फर्स्ट इज 0.23 प्लस 3 मीटर्स, अगेन प्लस 0.23 प्लस 3.5 मीटर्स, अगेन प्लस 0.23। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबके लिए। लेंथ निकालते वक्त अगर वो एरिया निकालने के लिए जो लेंथ निकालते हैं, तो वो किचन के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो किचन के लेफ्ट साइड में एक 0.23 की वॉल है, और दोनों का पार्टीशन इंटरमीडिएट में 0.23 है, बेडरूम में फिर अगेन 3.5 का तो लेंथ हो गया, अगेन लास्ट में 0.23, ऐसे 0.23 के कितने वॉल्स होंगे, 1 2 एंड 3, 3 वॉल्स आर 0.23, एंड लेंथ कितनी कितनी होगी 3 मीटर्स एंड 3.5। तो ऐसा टोटल लेंथ फ्रॉम एक्स डायरेक्शन में देखो टॉप से बताओ कितना होगा, जहाँ पे आरसीसी स्लैब वी कैन ले डाउन द आरसीसी स्लैब, कितना होगा बताओ, टोटल लेंथ बताओ, कैलसी निकालो जल्दी जल्दी, टोटल लेंथ बताओ किचन के एक एंड से बेडरूम के लास्ट एंड तक अगर स्लैब उसके ऊपर में डालना है तो टोटल लेंथ बताओ, ओनली लेंथ एल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा। यस, लेंथ 7.19। 7.19। अच्छा, इसको कैलसी पे एक बार कैलसी पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं अपन। फर्स्ट क्या आएगा देखो, इसमें मेरे पास सारी चीजें हैं बट आपसे आंसर होना मेरे को है। 0.23 देखो, फर्स्ट किचन के पहले में एक वॉल था तो उसका 0.23 आ गया, 3 मीटर्स किचन का लेंथ आ गया, अगेन एक 0.23 एक वॉल आ गई, अगेन 3.5 एक लेंथ हो गया, और एक अगेन 0.23 लास्ट वॉल आ गई। यस, 7.19 इज द करेक्ट, ठीक है ना। तो लेंथ टोटल क्या हो गई अब 7.19। अब देखो दूसरे, मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि अपने जैसे फिगर्स रहते हैं, जैसे रूल्स रहते हैं, उसको ऐसे मतलब इसमें डिविजन्स करो उसके, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरियाज। फर्स्ट एरियाज निकालो, थिकनेस तो गिवन है अपने पास, एरियाज निकालने के लिए तो मैंने डिवाइड किया फर्स्ट ऊपर के फिगर को एक एरिया में, नीचे की फिगर को एक एरिया में। जब ऊपर के फिगर में एरिया में डिवाइड किया तो लेंथ ले लिया अपन ने, विड्थ लेते वक्त अपन क्या करेंगे, दोनों वॉल लेंगे, और नीचे का जब लेंगे तो उसमें एक वॉल इंक्लूड करेंगे। तो बेडरूम के लिए जो और किचन के लिए जो 4 मीटर्स है, तो 4 प्लस 0.23 प्लस 0.23 कितना आएगा, 4 प्लस 0.23 प्लस 0.23 विड्थ निकालने के लिए 4.46। 4.46, 4.46, ठीक है। 4.46। तो ये एक ऊपर का एरिया हो गया, ठीक है। वैसे नीचे का एरिया आएगा लिविंग रूम का, इसको नाम देंगे अपन A2, ऊपर का नाम दे दो A1, नीचे का नाम दे दो A2। ऐसे जितने वेरियस शेप के एरियाज अगर बनते हैं, मतलब अलग अलग डिविजन्स बनते हैं, तो उसके एरियाज निकाल दो A1 A2 A3 A4 A5, सो दैट अपने कैलकुलेशन आसान हो। और अपन कैसे कर रहे हैं इसको, फिगर्स में सिंपलेस्ट वे में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले डिवाइड कर दिए A1 को, जिसका लेंथ बन गया 7.19, और विड्थ बन गया 4 पॉइंट कितना बताया आपने, 4 पॉइंट 46। 4.46। 4.46। यस 4.46। वैसे लिविंग रूम का जो एरिया है A2, A2 निकालने के लिए क्या होगा, दोनों तरफ के 0.23 लेंथ ऐड होगा, तो कितना होगा लेंथ साइड देखो, 4 प्लस 0.23 प्लस 0.23 4.46। 4.46। 46। वैसे विड्थ A2 का क्या रहेगा, अब एक ही वॉल इंक्लूड करना है आपको, क्योंकि एक दोनों वॉल ऊपर में इंक्लूड हो गए थे। कितना आएगा, थ्री पॉइंट सेवन थ्री, बराबर 3.73। यस सर। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो मेरे पास कैलकुलेशन है। वी हैव डिसाइडेड द टॉप एरिया इज A1, जिसमें लेंथ निकालते वक्त आपने क्या किया थे, देखो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख लिया है। लेंथ इज इक्वल टू 0.23 लेफ्ट साइड के वॉल के लिए, प्लस किचन साइड, प्लस इंटरमीडिएट 0.23, प्लस बेडरूम की लेंथ 3.5, यहाँ पे देखो 3.5 आ गया, प्लस 0.23, ऐसा लेंथ वाइज हो गया 7.19 मीटर्स।
वैसे वही रूम का विड्थ वाइज अगर दोनों साइड का अगर वॉल इंक्लूड करते हैं तो 0.23 टॉप विड्थ प्लस 4 मीटर इज द विड्थ ऑफ द बेडरूम एंड किचन, सेम विड्थ है दोनों के लिए, प्लस 0.23 नीचे का वॉल ले रहे हैं आप, यहाँ क्या वॉल ले रहे हैं तो कितना आएगा 4.46 मीटर। वैसा A2 एरिया आप नीचे के एरियाज को कंसिडर कर रहे हैं, जिसके लिए लेंथ क्या हो गया 0.23 प्लस 4 प्लस 0.23 तो कितना आ गया 4.46। वैसी अब लेंथ हो गया, विड्थ कितना होगा तो एक ही वॉल में इंक्लूड होगा विड्थ, तो 3.5 इज द लिविंग रूम की विड्थ प्लस 0.23 इज द थिकनेस ऑफ द वॉल, ऐसा बन गया है 3.73। इट मीन्स अपने फिगर को अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि कैसा है कि जब एरियाज निकालते हैं तो सिंप्लीफाइड वे में जितना निकालेंगे उतना फास्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अपने सिंप्लीफाइड वे में फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ आरसीसी स्लैब, we have divided the complete figure complete that is the जो plan था into two figures, so into two areas, A1 as the top areas and A2 as the bottom area। ये दो चीज कंसिडर क्लियर हो गई सबको? यस। यस सर। अब उसका एक छोटा सा फिगर आप ड्रॉ कर लो सो दैट वो भी कंफ्यूज ना हो आपको, ठीक है ना। तो मेरे पास फिगर्स भी है, तो दिस इज नथिंग बट द फिगर फॉर दिस। एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करना है आपको, ठीक है ना। ये फिगर क्या करेगा, आपको सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करेगा कि आपने जो जो काम किए थे वो करेक्ट है नहीं है, ठीक है ना। तो हियर वी हैव ड्रॉन अ स्मॉल फिगर फॉर दिस, ठीक है। तो दिस A1 इज द फिगर वी हैव इंक्लूडेड एज दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एज द लेंथ है 7.19, इसमें विड्थ में दोनों वॉल इंक्लूड हो गया तो 4.46 बन गया। वैसे A2 में दोनों A2 में लेंथ साइड हो गया 4.46 और A2 की विड्थ हो गई जो अभी निकाले थे 3.73। तो एक छोटा सा फिगर आप ड्रॉ करो सो दैट दिस कंसेप्ट इज क्लियर हाउ वी हैव कैलकुलेटेड और हाउ वी हैव टेकन द एरियाज, ठीक है ना। एरियाज कैसे निकाले आपने आरसीसी स्लैब के लिए, तो दिस कंसेप्ट टू बी क्लियर, तो ड्रॉ स्मॉल फिगर फॉर दिस, ठीक है। ये फिगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा हाउ वी हैव इंक्लूडेड ऑल दिस वॉल थिकनेसेस, ये कैसे इंक्लूड किए, लेंथ कैसे इंक्लूड किए और कौन से वॉल्स आपने इंक्लूड किए हैं, तो वो सारी चीज़ें कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर, ठीक है। और एक चीज़ ये याद रखना है कि अगर A1 में अगर आप दोनों वॉल्स ले रहे हैं तो A2 में एक ही वॉल आएगा। ऐसा नहीं हो कि बीच का वॉल है तो ऊपर भी इंक्लूड हो रहा नीचे भी इंक्लूड हो रहा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो वंस वी हैव एडेड द थिकनेस फॉर A1 के लिए दोनों वॉल्स ले लिए थे आपने, अब A2 का एक ही वॉल रिमेनिंग था तो उसके लिए बन गया 3.73। तो ये कंसेप्ट क्लियर है सबके लिए? यस यस यस। सर। ये फिगर Yes, बहुत sir. ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये छोटी सी जो फिगर ड्रॉ किया मैंने, ये फिगर आपको एक्सप्लेन करेगा हाउ वी हैव टेकन द हाउ वी हैव फाइंड आउट द कैलकुलेशन, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपने कैसे लिए थे वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सर क्या? हाँ बोलिए। सर सर मुझे एक्चुअली डाउट वो है कि जैसे एक्स डायरेक्शन अपन 3 ले रहे हैं और वॉल है वो 2.3 3.3 इसके वॉल ले रहे हैं अपन, और प्लस 3.5 कर रहे हैं अपन। तो सर वाई डायरेक्शन में जो टी वाली जो वॉल है ऊपर की इसमें वो, आवाज। हेलो हाँ हेलो। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही हाँ है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ सर, तो सर वो जैसे एक्स डायरेक्शन में तो अपन पॉइंट थ्री और 3.5 ले लिया अपन ने। सर वाई डायरेक्शन वाला एक बार फिर बताएंगे क्या, से विथ वाला 2.3 सर यहाँ पे हाँ 2 लिए तो। हाँ, अब वाई डायरेक्शन में ऐसा है कि वाई डायरेक्शन में आप एक लेके A2 के लिए A1 के लिए आपने क्या लिया, देखो वाई डायरेक्शन में A1 के लिए दो वॉल थिकनेस लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में एक वॉल थिकनेस ले लो A1 के लिए और A2 के लिए दो वॉल थिकनेस ले लो, तब भी चलेगा आपको। सिर्फ आप ऐसा करना है कि पूरा एरिया कवर होना है कि जितने मेरे पास वॉल्स है ना, ये शेप में जितने वॉल्स है सबके ऊपर में स्लैब इंक्लूड होना है, बस ये कंसेप्ट है मेरे पास, ठीक है। कि मेरा जितना स्लैब है ये जिगजैग वे में जो अलग डायरेक्शन में जो स्लैब है वो सारे वॉल्स के ऊपर में अपने को स्लैब डालना है। तो आप कैसा भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक्स डायरेक्शन में पूरे वॉल्स ले लिया और वाई डायरेक्शन लेते वक्त सिर्फ दो वॉल लिया, जैसे 4 मीटर था, 4 प्लस 0.23 ऊपर का लिया प्लस 0.23 नीचे का लिया। किसी कोई बोलता है कि सिर्फ ऊपर का लूंगा, ठीक है, A1 के लिए ऊपर का ले लो, मगर A2 में जब लेंगे आप तो A2 में 3.5 के साथ 0.23 यहाँ का भी लेंगे और 0.23 यहाँ का भी लेंगे, सो दैट एवरी वॉल टू बी इंक्लूडेड वाइल फाइंडिंग आउट द एरियाज, ठीक है ना।
सारे वॉल्स आप इंक्लूड करो, डबल नहीं लेना आपको, मगर ऐसे लेना है सो दैट एवरी वॉल्स टू बी कवर्ड। ठीक है, ओके सर। ठीक है, पूरा एरिया कवर करना है आपको, पूरे वॉल्स कवर करना है, डबल नहीं लेना है, डबल लेना नहीं है, बट ऐसा लो आप कि पूरे वॉल्स कवर हो। ठीक है, now we will find out the actual quantity of RCC slab. So I am writing down as quantity of RCC slab. अगर आप ये एरियाज का कंसेप्ट अगर समझ में आया होगा तो आपका आधा प्रॉब्लम एरिया का मतलब आरसीसी स्लैब का निकालने का सॉल्व हो चुका है, आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको कैलकुलेशन में एलबीएस करना है और कुछ भी नहीं करना है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट करना है। ठीक है, तो अगर आपका एरियाज अगर समझ में आया है या फिर एरियाज आपने जल्दी से निकाल लिए है ना, विदाउट एनी मतलब ये चेंजेस में अगर फास्ट वे में अगर निकल गया है, तो एक ही लाइन में, एक दो लाइन में आपका वी विल फाइंड आउट द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आरसीसी स्लैब। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल वे में आंसर हो जाता है, इसलिए अपन ने बहुत सिंपलेस्ट वे में वी हैव डिवाइडेड द कंप्लीट फिगर इनटू 2 एरियाज। ऐसे 3 एरिया भी हो सकते हैं, 4 एरिया भी हो सकते हैं, जितना बड़ा प्लान होगा, जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, उसके हिसाब से एरियाज में डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट वे में वी विल फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ आरसीसी स्लैब। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आरसीसी स्लैब में फर्स्ट वी विल फाइंड आउट फॉर एरिया A1। अब A1 का सबसे पहले मैं नाम दे रहा हूँ A1। A1 के लिए मैं निकाल रहा हूँ A1 का लेंथ कितना है, जो लिखा था वही लेंथ मैं फिर से लिख रहा हूँ। लेंथ ऑफ A1 एज वी हैव कैलकुलेटेड एज 7.19 मीटर। Now width of A1 we have already calculated, but again we are writing as 4.46 meters। ठीक है, तो A1 जिसका नाम दिए थे उसका लेंथ है 7.19, उसी का विड्थ है 4.46। ऐसे कितने एरिया है मेरे पास, कितना एरिया है, हाउ मेनी एरियाज आर देयर, A1 एरियाज कितने हैं मेरे पास, नंबर्स के 1 1 ही है ना, एक कितना है उसका लेंथ 7.19, विड्थ कितना है 4.46, हाइट कितना है, 4.46 यस, हाइट कितना है, हाइट ऑफ स्लैब, हाइट ऑफ स्लैब कितना रहेगा बताओ, हाइट ऑफ स्लैब, यस, व्हाट इज हाइट ऑफ स्लैब, आरसीसी स्लैब का हाइट कितना है, 150 mm, 1.15 150 mm। यस 0.15। ठीक है ना, हाइट एंड थिकनेस वन एंड द सेम, 0.15 कितना आएगा बताओ क्वांटिटीज में, 4.81 4.81। इट हैज बीन मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स, तो मैंने लास्ट में क्यूबिक मीटर्स भी लिख दिया है, इट हैज बीन मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट A2। अब A2 का अगेन लेंथ ऑफ A2 वो सिंपलेस्ट वे में कैलकुलेशन हो रहा है अपना। ठीक है ना, सिर्फ A1 A2 जितना एक्यूरेट आपका होगा उतना आपका आंसर्स एक्यूरेट आते जाएगा और सिंपल वे में आपकी कैलकुलेशन होती जाएगी। ठीक है ना, विड्थ ऑफ A2, विड्थ ऑफ A2 कितना है 3.73। ठीक है, लेंथ ऑफ A2 कितना है बताओ 4.46 और विड्थ कितना है 3.73। ऐसे A2 कितने मेरे पास, कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, 4.46, 3.73 एंड 0.15 कितना होगा बताओ, 2.495 4.49 2.4955। यस 2.495। ठीक है, तो A1 A2 से निकाल दिया अपन ने क्वांटिटी ऑफ आरसीसी स्लैब। बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ आरसीसी स्लैब, इट इज जस्ट टू फाइंड आउट द क्यूबिक मीटर्स में कंटेंट, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, बस इतना काम करना है, आरसीसी स्लैब का क्वांटिटी निकल गया, टोटल क्वांटिटी भी निकल जाएगा अपने पास, जैसा सिंपल निकल। अच्छा, इसमें कोई डिडक्शन है क्या, तो देर इज नो ऐसा डिडक्शन। अगर सपोज फील्ड में देखेंगे आप तो देर इज अ डक्ट प्रोवाइडेड है ना, एक एक स्लैब रहता है जहाँ पे मतलब पूरे रहता है कवर, और उसमें कुछ एम्प्टी भी रहता है कि वहाँ पे छोड़ना है आपको स्लैब। ठीक है ना, वहाँ पे स्लैब नहीं रहेगा, तो ऐसा अगर कुछ रहेगा तो डिडक्शन होगा, बट हियर ये प्लान में मेरे पास देर इज नो ऐसा डिडक्शन इन द स्लैब, स्लैब में नहीं है। ठीक है ना, स्लैब में कोई ऐसा डिडक्शन नहीं है तो माइनस नहीं होगा, तो डायरेक्टली वी विल ऐड दिस टू क्वांटिटी, तो दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी कितना आएगा
कितना आएगा 7 पॉइंट so this will 7 point sorry 7.305 cubic meters. The total quantity of RCC slab is 7.305 cubic meters. ये concept clear हो गया सबको? ठीक है? How we have calculated the quantity of RCC slab? Yes. Yes, sir. Is that clear to everyone? How we have calculated the quantity of RCC slab? Yes, sir. ठीक है. Next. अगेन आज के लेक्चर में और एक चीज निकालना है आपको. वी आर फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ इंटरनल प्लास्टर. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. इंटरनल प्लास्टर. इंटरनल प्लास्टर. ठीक है. तो इंटरनल प्लास्टर का क्वांटिटी देखो कैसे निकालेंगे. हाउ वी विल फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ इंटरनल प्लास्टर. इंटरनल प्लास्टर का सबसे पहले रूम हाइट देखना है आपको. ठीक है ना. अब क्वांटिटी ऑफ इंटरनल प्लास्टर में वी आर फाइंडिंग आउट इंटरनल प्लास्टर फॉर वॉल्स एज वेल एज फॉर स्लैब. ठीक है ना. स्लैब पे भी प्लास्टर करना है आपको और वॉल्स पे भी प्लास्टर करना है. ठीक है. तो इंटरनल प्लास्टर कहाँ कहाँ पे होगा बताओ. एनी कंसेप्ट रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल प्लास्टर. बताओ कैसे निकालेंगे इंटरनल प्लास्टर. Yes. Any suggestions how we will find out the quantity of internal plaster? Internal plaster. Dimension लेंगे. Yes. To find out the quantity of internal plaster, we will take the dimensions of internal room dimensions. जैसे किचन. अब किचन में कितने वॉल्स हैं. तो लेंथ साइड में 2 वॉल्स हैं और विड्थ साइड में 2 वॉल्स हैं. ठीक है. किचन अगर एक ही रूम लेता हूं मैं तो रूम किचन इट इज हैविंग 2 लेंथ साइड वॉल्स एंड 2 विड्थ साइड वॉल्स. दैट मींस देयर आर ओवरऑल 4 वॉल्स to be which is to be carried out, that is internal plaster to be carried out for this 4 walls. 4 walls में आप internal plaster करेंगे. ठीक है. किचन में. वैसे बेडरूम है. बेडरूम में भी 4 वॉल्स में इंक्लूड होगा. वैसे लिविंग रूम है. लिविंग रूम में भी 4 वॉल्स में इंटरनल प्लास्टर टू बी कैरिड आउट. ठीक है. ऐसा अगर देखा जाएंगे तो हर रूम में चारों दीवारों पे आपके इंटरनल प्लास्टर होगा. डिडक्शन भी होगा डोर विंडोज का, वो भी देखेंगे आप. बट 4 वॉल्स टू बी टेकन केयर while finding out the internal plaster. ठीक है. So is that clear to everyone? Yes. Yes, sir. इंटरनल प्लास्टर कहाँ कहाँ पे होगा समझ में आया सबको. यस. वॉल और विंडोज का भी उसमें से निकालेंगे ना, उसमें से क्योंकि हाँ वो भी निकालेंगे. डिडक्शंस भी होगा. तो वो मतलब अभी कहाँ पे लेना है. वी विल फाइंड आउट द इंटरनल प्लास्टर फॉर देयर इज द इंटरनल वॉल. ठीक है ना. इंटरनल प्लास्टर इंटरनल वॉल, एक्सटर्नल प्लास्टर एक्सटर्नल वॉल, वो भी आएगा आगे में. ठीक है. तो इंटरनल प्लास्टर इंटरनल वॉल्स पे रहेगा. तो अंदर वाले वॉल्स. तो अंदर क्या है. किचन में 4 वॉल्स है, बेडरूम में 4 वॉल्स है, लिविंग रूम में 4 वॉल्स है. तो 1 by 1 वी विल फाइंड आउट फॉर किचन. सबसे पहला मैं नाम दे रहा हूँ किचन के लिए. अब किचन का लेंथ बताओ कितना है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ किचन. कौन से लेंथ ऑफ किचन कितना है. 3 मीटर. 3 मीटर. 3 मीटर. ठीक है. यहाँ पे वॉल 3 मीटर्स में क्या होगा. प्लास्टरिंग होगा. ठीक है. व्हाट इज विड्थ ऑफ किचन. 4 मीटर्स. 4 meter. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेंथ मालूम कर दिया अपने किचन का कि यहाँ पे प्लास्टर होगा. 3 मीटर्स का जो लेंथ था उस पर प्लास्टर होगा. विड्थ जो था 4 मीटर्स पे उस पर प्लास्टर होगा. ठीक है. अब 3 मीटर्स के कितने वॉल्स हैं और 4 मीटर्स के विड्थ ऑफ 4 मीटर्स के 2 वॉल्स है. 2 वॉल्स 3 मीटर्स के हैं, 2 वॉल्स 4 मीटर्स के. ठीक है. तो ऐसे 2 नंबर्स अभी मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ. लेंथ साइड अलग, विड्थ साइड अलग. ठीक है. अब लेंथ ले रहा हूँ. कितनी लेंथ ले रहा हूँ. 3 मीटर्स. ठीक है. 3 मीटर्स ले लिया मैंने. अब व्हाट इज विड्थ ऑफ प्लास्टर. विड्थ ऑफ प्लास्टर क्या रहेगा बताओ. विड्थ ऑफ प्लास्टर इंक्लूड होगा क्या. और व्हाट इज द मोड ऑफ नहीं मोड ऑफ मेजरमेंट क्या रहता है. प्लास्टर काहे में मेजर होता है. मीटर स्क्वायर में. तो एक क्वांटिटी उसमें नहीं रहेगी. तो विड्थ नहीं रहेगी.
हाइट ऑफ प्लास्टरिंग क्या रहेगा बताओ, हाइट कितनी हाइट तक प्लास्टर करेंगे आप? 3 meter. यस, तो दिस हाइट अगेन इट हैज बीन गिवन इन द सेक्शन, जैसा मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको मूव हो रहा है, ठीक है, तो इट इज गिवन एज 3000। व्हाट इज दिस 3000 इंडिकेट्स? क्या है 3000? क्या है ये 3000 दिख रहा है? 3000 आपको सेक्शन में height of wall. यस, इंटरनल और एक्सटर्नल हाइट ऑफ वॉल, मतलब 3000 इज द हाइट ऑफ वॉल, तो वो हाइट पे आपका प्लास्टर होगा। लेंथ साइड तो इट्स ओके कि 2 वॉल है 3 मीटर्स की, विड्थ नहीं रहेगा बट हाइट तो रहेगा उसका, हाइट नहीं जा सकता, तो हाइट ऑफ वॉल इज 3 मीटर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? यस, ठीक है, तो हियर क्वांटिटीज कितनी आएगी देखो, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस multiplied by this. So it is nothing but 18 or 18 square meter. ठीक है, square meter. 18 स्क्वायर। अब ये तो एक साइड हो गया मेरे पास, मगर मेरे पास ऐसे 4 साइड है, मतलब एक साइड मतलब इन द सेंस लेंथ साइड हो गया ये, और विड्थ साइड भी है मेरे पास। ऐसे कितने विड्थ थे मेरे पास? 2 मीटर्स। ठीक है, 2 मीटर्स का है ना मेरे पास, और सॉरी 2 नंबर्स है मेरे पास विड्थ के। अब लेंथ नहीं लूंगा, नील लिखूंगा लेंथ में। विड्थ कितना है मेरे पास? 4 मीटर। हाइट कितना है? हाइट कितना है? 3 मीटर। तो अगेन क्वांटिटी कितना आएगा मेरे पास? दिस मल्टीप्लाइड बाय 24. मल्टीप्लाइड बाय दिस, so it is nothing but 24. again it is measured in square meter। ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, Yes, sir. अलग अलग लिख के आपको करना है, एक लाइन में पूरा कैलकुलेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आप लेंथ अलग मेजर हो रहा है और विड्थ अलग मेजर कर रहे हैं आप। ठीक है, लिखते वक्त मैंने एक लाइन में लिखा है यहाँ पे इसको अगर लिख ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इसको यहाँ पे भी लिख सकता मैं, क्योंकि सेकंड लाइन मेरे पास है। ठीक है ना, तो विड्थ साइड में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये लिखना है। वैसे बेडरूम लो, बेडरूम अगेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेडरूम? व्हाट इज लेंथ ऑफ बेडरूम? लेंथ ऑफ 3.5. बेडरूम कितना है बताओ? 3.5, 3.5। ऐसे कितने वॉल से, कितने वॉल पे प्लास्टर होगा? 3.5 के 2 वॉल्स पे होगा। लेंथ कितना है? 3.5। अगेन ये नहीं आएगा कुछ भी। हाइट कितना है? सेम 3 मीटर। कितना होगा बताओ? 21. 21। ठीक है, अगेन स्क्वायर मीटर। ऐसी वेट, विड्थ ऑफ 4 मीटर, तो सेम है 4 मीटर, तो नील ये भी सेम आ जाएगा। अगेन व्हाट इज विड्थ? 4 मीटर। लेंथ नहीं था, विड्थ था, हाइट 3 मीटर। ठीक है, so again this quantity is same as this quantity as 24. ठीक है, तो मतलब किचन भी हो गया, बेडरूम भी हो गया। थर्ड, लिविंग। ऐसा स्टेप बाय स्टेप करना है, ये कंफ्यूज नहीं होने के लिए बहुत सिंपलेस्ट वे में वी आर हैविंग अ कैलकुलेशन फॉर दिस। ठीक है ना, बहुत सिंपल वे में अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये कैसा थोड़ा सा ऑनलाइन मोड होने की वजह से सिंपलेस्ट वे जैसा हो सकता है वी विल कैरिंग आउट द क्वांटिटीज। ठीक है ना, लिविंग रूम का लेंथ कितना है? कितना मीटर का लेंथ ऑफ लिविंग रूम? 4 meter. 4 मीटर। 4 meter. 4 मीटर्स के कितने 4 feet. वॉल से? 2 वॉल से 4 मीटर्स के। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे 4 मीटर्स लिख दिया, जिसकी लेंथ 4 मीटर्स है। ऐसे कितने वॉल से? 2 वॉल से। विड्थ नहीं आएगा, हाइट ऑफ वॉल इज 3 मीटर्स। कितना आएगा इससे क्वांटिटीज बताओ? 24. यस, 24. 27। 27 बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट विड्थ। व्हाट इज विड्थ ऑफ लिविंग रूम? 24 आएगा। 24 and 1. 24। 24। What is width of wall? Width of living room 3.5। width of living room कितना है? अंदर का जो width है 3.5। ऐसे कितने वॉल्स पे प्लास्टर करना है? 2 वॉल्स पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लाएगा। width में क्या आएगा? 3.5। हाइट इज सेम। हाइट देखो सबके 3 मीटर ही थे, इंटरनल हाइट इज 3 मीटर। ठीक है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इंटरनल हाइट इज 3 मीटर। कितना आएगा? 20। 21. 21। ये चीज सबको समझ में आ गई है? यस,
हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द क्वांटिटी ऑफ इंटरनल प्लास्टर्स, समझ में आया सबको? ठीक है, Yes. Yes, sir. बहुत सिंपल है। एलबीएच करना है, एलबी करना है, मतलब एलबी आएगा या फिर डब्ल्यू लेंथ इनटू हाइट आएगा या फिर विड्थ इनटू हाइट आएगा, ठीक है। और नंबर्स नंबर्स दो दो ही रहेगा। लेंथ कभी हाइट से मल्टीप्लाई होगा, कभी विड्थ हाइट से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसकी टोटल क्वांटिटीज कितनी आएगी बताओ? 132. 1 132. 132, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, बट आगे भी आपको कैलकुलेशन करना है इसके आगे भी, ठीक है। डिडक्शन आएगा, बट अभी ये स्टेज तक 132 इज द क्वांटिटी। इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो हाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट इज वी आर फाइंडिंग आउट द डिडक्शन। अब डिडक्शंस क्या क्या होगा बताओ आप? विच डिडक्शंस विल बी कैरिड आउट? Doors and window. यस, डोर्स विंडोज। बस ये दो चीजें आपको डिडक्शंस करना है। जो आपको दिख रहा है प्लान में उतना ही डिडक्शंस होगा। तो प्लान में दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पे स्पेस, देयर इज ओपन स्पेस फॉर डोर्स। ये डोर्स के लिए भी ओपन दिख रहा है और विंडो के लिए भी ओपन दिख रहा है। मतलब मेरे टोटल 132 में से 132 जो निकाला था उसमें से दो चीज माइनस करना पड़ेगा, एक डोर्स की क्वांटिटी और एक तो विंडोज क्वांटिटी। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एज पर IS 1200 द टोटल क्वांटिटी फॉर डोर्स एंड विंडोज दोनों के लिए वी शुड हैव अ डिडक्शन ऑफ 50%। टोटल नंबर्स में से 50% डिडक्शन होगा। टोटल नंबर में से 50% डिडक्शन होगा। जैसा मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 डोर्स है मेरे रूम में, तो मैं डिडक्शन 5 डोर्स का करूंगा। मेरे पास बिल्डिंग में 20 विंडोज है, तो मैं डिडक्शन 10 विंडोज का करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि एज पर IS 1200 एक्स्ट्रा मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर डोर्स एंड विंडोज। तो आप दोनों तरफ से अगर डोर्स एंड विंडोज डिडक्शन कर रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी डिडक्शन में जाएगी। तो IS 1200 क्या बोलता है कि जितने नंबर्स आप कैलकुलेट करेंगे उतने नंबर्स का 50% टू बी कैरिड आउट फॉर डिडक्शन, ठीक है। समझ में आया आपको? और ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में अभी मैं लिख के बताता हूँ आपको। दो तो उसका डिडक्शन आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिडक्शन, डिडक्शन। अब डिडक्शन फॉर डोर्स में देखो कितने डोर्स है मेरे पास, पहले वो बता दो। टोटल डोर्स कितने हैं, तो मैं वन बाय वन एडिशन बताता हूँ आपको। किचन में कितने डोर्स ओपनिंग हो रही है? देखो किचन में कितनी हो रही है, जल्दी बता दो। 1 1। नहीं, किचन में कितने डोर्स? 2. हाँ 2। अभी बाद में डबल बताऊँ। देंगे। 2. टू नंबर है, दिख रहे हैं किचन में कितने डिडक्शन है? दिख रहा है, एक बेडरूम के तरफ जा रहा है, एक लिविंग रूम के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कितने किचन में ओपनिंग है डोर्स की? एक बेडरूम के तरफ है, एक लिविंग रूम की तरफ है। तो किचन में ओपनिंग कितनी बन गई? 2। अब दूसरा रूम, बेडरूम में कितनी ओपनिंग है बताओ? बेडरूम में कितनी है? 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर आ गई। लिविंग रूम में कितनी है? 2। 2. यस, लिविंग में 2 नंबर। ऐसे टोटल कितने हो गए? कितने हो गए टोटल? 5. 5। 5. 5। अब ये स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर IS दैट इज 1200, एज पर IS 1200 50% डिडक्शन टू बी टेकन। क्यों लेना है? आप इमेजिन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है कि 50% इसलिए लेना है क्योंकि मटेरियल एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा। जब मैं प्लास्टिंग करूंगा तो प्लास्टिंग में यहाँ पे भी मटेरियल होगा। देखो मेरा जो कर्सर दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिंग लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी लगेगा। तो इसमें जो मटेरियल इंक्लूड होगा वो कहाँ पे इंक्लूड करेंगे? आप तो अंदर अंदर बता रहे प्लास्टर हो रहा है अंदर अंदर, बट जब ये जो दिख रहा है जहाँ पे डोर फिक्स होता है तो उस पे भी एक प्लास्टिक की लेयर आती है फ्रेम पे, है ना। फ्रेम पहले प्लास्टिक होती है, फिर उसके ऊपर फ्रेम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लास्टिक लगेगा, यहाँ पे भी प्लास्टिक लगेगा,
ऊपर साइड पे भी लगेगा, मतलब अगर देखेंगे आप तो जहाँ जहाँ पे फ्रेम फिक्स होती है उससे पहले प्लास्टरिंग होता है, फिर डोर फ्रेम फिक्स होता है, प्लास्टरिंग होता है फिर डोर फ्रेम फिक्स होता है। समझ में आ रही मेरा कंसेप्ट? इसलिए एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप डिडक्शन ज्यादा करेंगे तो वो मटेरियल कौन इंक्लूड करेगा? इसलिए एज पर आई एस 1200 क्या बोलता है कि जो नंबर्स टोटल आए हैं उसका सिर्फ आधा लो आप, 50% deductions to be taken. That means total numbers are five numbers we will have divided by 2. 50% मतलब 5 divided by 2 कितना होगा बताओ? 2.5. 2.5 numbers. तो deductions लेते वक्त आप लेंगे only 2.5. Will take the numbers as 2.5. ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लेंगे 2.5. 2.5. ये चीज का कंसेप्ट क्लियर हो गई आपको? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. We will take deductions as 2.5. ठीक है, 2.5. So deductions, 50% deductions to be taken as per IS 1200. So total numbers are 5. So 5 divided by 2, 50% मतलब हाफ लेना है आपको. तो 5 का हाफ कितना होगा? 2.5. तो 2.5 नंबर्स हो गया. व्हाट इज द लेंथ ऑफ डोर? अपने फिगर में कितने लेंथ ऑफ डोर है देखो. व्हाट इज लेंथ ऑफ डोर? यस, 0.9. 0.9. 0.9. व्हाट इज विड्थ ऑफ डोर? 2.1. 2.1. Width of door? Width of door? 0.23. Width of door? 0.23. Width of door. अगर समझो मैंने 0.23 लिख रहा है width. What is height of door? 2.1 sir. तो ये तीनों मिला के 2.1. 2.1. 2.1. ये तीनों मिला के मीटर क्यूब हो जा रहा है. तो मीटर क्यूब होगा क्या? No sir, meter square हाँ. होगा. तो कौन सी चीज मिसिंग रहेंगी यहाँ पे? नील कहाँ पे लिखेंगे आप? Width. यस, Width देयर missing. विल नॉट बी एनी विड्थ ऑफ डोर. कोई विड्थ नहीं रहती है. ठीक है ना? डोर जैसे यहाँ पे कोई एक क्वांटिटी नील में आ रही थी, स्क्वायर मीटर में लेते वक्त आप देखेंगे कोई एक क्वांटिटी नील में आ रही थी. ठीक है, तो 2.5 इज द नंबर. लेंथ ऑफ डोर इज द गिवन व्हिच हैज बीन गिवन एज 0.9. विड्थ नहीं रहती है डोर की. ठीक है ना? और हाइट ऑफ डोर व्हिच हैज बीन गिवन इन द दैट इज प्लान एज 2.1. क्योंकि ये सारे क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में है. जब स्क्वायर मीटर आप बोल रहे हैं तो डिडक्शन भी स्क्वायर मीटर में होगा, या फिर आप बोल रहे हैं स्क्वायर मीटर में और डिडक्शन कर रहे हैं क्यूबिक मीटर्स में, तो ये फिर अनइवन हो गया. ठीक है, तो जो चीज स्क्वायर मीटर में चल रही है तो उसको स्क्वायर मीटर में ही डिडक्शन होगा. तो इसलिए इसका कोई विड्थ नहीं रहेगा, डोर का विड्थ नहीं रहेगा. इवन विड्थ इज गिवन, फ्रेम का विड्थ गिवन है. जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 100/80, ये फ्रेम का है. जो लकड़ी का जो फ्रेम आता है ना, वुडन फ्रेम, उसका विड्थ दिया है, बट वो विड्थ यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, वाई? बिकॉज इट हैज बीन मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है कंसेप्ट? Yes sir. Yes. Yes sir. तो इसका बताओ कितना आ रहा है, बताओ. 4.725. 4.725. 725. 4.725. ठीक है ना? 4.725. 4.725. करेक्ट है सबका? 4.725. ठीक है, वैसे अब विंडोज का करेंगे आप. और विंडोज का सेम कंसेप्ट जो डोज विंडोज का 50% चलता है. विंडोज के लिए जो भी कंसेप्ट यूज होगा. विंडोज, अब देखो विंडोज टोटल कितना है, टोटल बताओ. अब किचन में 2 है, बेडरूम में 2 है और लिविंग रूम में 2 है, सब में 2-2 है. तो टोटल 6. विंडोज कितने हैं? 6 नंबर. ठीक है, अब विंडोज का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है. 50% ही रहेगा, मगर 50% बोलते वक्त ऐसा रहेगा कि विंडोज का 50% टू बी टेकन फॉर इंटरनल प्लास्टर एंड 50% टू बी टेकन फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर, बिकॉज विंडोज अंदर भी खुलता है और बाहर भी खुलता है. ठीक है, तो
तो विंडोज के लिए वही 50% वाला कंसेप्ट है, मगर बोलते हुए क्या बोलेंगे आप कि 50% टू बी टेकन फॉर इंटरनल प्लास्टर एंड 50% टू बी टेकन फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नंबर्स ऑफ विंडोज कितने हैं? तो टोटल नंबर्स ऑफ विंडोज इज 6 नंबर्स। रूम में 2 है तो 6 नंबर्स हो गया। तो एज पर आईएस क्या बोलता है? एज पर आईएस 1200, 50% to be taken, that is 50% to be taken, that is equal to 50%। 50% आप लेंगे इसका, 50% to be taken, तो इसके लिए क्या होगा? 6 numbers divided by 2। कितना आएगा फिर? कितना आएगा? 3 नंबर। 3 नंबर्स लीजिए। अब व्हाट इज लेंथ ऑफ विंडो? लेंथ ऑफ विंडो बताओ कितना है? 0.9 0.9 विंडो 0.9 लेंथ ऑफ 1 विंडो meter. 1 मीटर। 1 meter अगेन विड्थ नहीं आएगा। हाइट ऑफ विंडो कितना है? 1.2. 1.2. 1.2। कितना होगा? 3.6. 3.6 3.6। ठीक है, बराबर है 3.6। 3.6 बराबर है। Yes, sir. ओके 3.6। तो और इसके अलावा कोई डिडक्शन था? इसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं था। ये मैं स्टेटमेंट को हाईलाइट भी करते रहा हूँ। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 50% डिडक्शन वाला जो स्टेटमेंट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% वाला जो स्टेटमेंट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ इंटरनल प्लास्टर आफ्टर डिडक्शन इज अब बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी है? तो पहले इसका एडिशन कर लो, ये दोनों का एडिशन कितना होगा? दिस प्लस दिस 8.325 8.325. 8.325। और आफ्टर डिडक्शन में कितना आएगा? दैट इज दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, दैट इज 123.7। ये आ रहा है, देखो 6 Yes, आ रहा sir. है। Yes, 123.68। So in this way 123.68 is the quantity of internal plastic. Okay, so it is nothing but the quantity of internal plastic. Okay? Is that clear to everyone? This quantity how we have calculated after the deduction होने के बाद में कितनी क्वांटिटी बच गई आपके पास? 123.68 after the deduction for doors and windows। ठीक है, क्या सब समझ में आ गया सबको? How we have calculated this 123.68? कोई डाउट? Yes. ओके, नेक्स्ट इज, अब इंटरनल प्लास्टर और कहाँ पे होता है बताओ? एक चीज छूट गई अपनी, इंटरनल प्लास्टर कहाँ करते? वेयर वी आर फाइंडिंग आउट द इंटरनल प्लास्टर। और कहाँ पे होता है इंटरनल प्लास्टर? एनी आइडिया? Slabs. यस, स्लैब। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ इंटरनल प्लास्टर ऑन वॉल्स एंड स्लैब, एंड वर्ड के साथ में स्लैब आता है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ स्लैब ऑल्सो। ठीक है ना, तो स्लैब लिख रहा हूँ, इंटरनल प्लास्टर फॉर स्लैब। ठीक है, कहाँ पे कर रहे हैं आप इंटरनल प्लास्टर? स्लैब में कर रहे हैं। अब स्लैब में भी कौन से स्लैब में कर रहे हैं? एक एक रूम लेंगे आप, किचन के स्लैब पे कर रहे हैं। ठीक है, किचन के स्लैब पे कर रहे हैं। तो किचन के स्लैब पे करने के लिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट किचन? लेंथ ऑफ किचन कितना है बताओ?
कितना 3 मीटर? meter. 3 मीटर. 5 meter. व्हाट इज विड्थ ऑफ किचन? 4 4 meter. meter. 4 मीटर. ठीक है. तो ऐसे किचन मेरे पास कितने हैं? 1. 1. 1, जिसका लेंथ कितना है? 3. विड्थ कितना है? विड्थ कितना है? 4. हाइट कितना है? Nil. यस. Nil. ये नील वर्ड जो है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, कहीं पे भी नील आ जाएगा. ठीक है. तो ऐसा है कि कहाँ पे नील लिखना है ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ऑल दिस क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर. ठीक है. तो नील लिखते वक्त कभी लेंथ में नील आ रहा है, कभी विड्थ में नील आ रहा है. ठीक है. कभी हाइट में नील हो रहा है. ठीक है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस क्वांटिटी वी आर इट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड. ठीक है ना. कौन सी क्वांटिटी कंसिडर नहीं करना है ये भी इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे हाइट कंसिडर नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप स्क्वायर मीटर्स में स्लैब की क्वांटिटी निकालें. ठीक है ना. प्लास्टरिंग की निकालें तो प्लास्टरिंग इतने एरिया में होगा, किचन के इतने एरिया में होगा जिसमें हाइट का कोई कंसेप्ट ही नहीं आपके पास. 3 into 4 खत्म हो गया. ठीक है. तो बताओ कितना आएगा ये? 12. 12. सिंपल. सिंपल है ना. 12. It will be 12 meters. Again it is measured in square meters. ठीक है ना. Again it is measured in square meters. तो इसी बेडरूम के ऊपर में भी आएगा. बेडरूम का लेंथ कितना है? 3.5 meter. 3.5. विड्थ ऑफ बेडरूम कितना है? 4 meter. 4 मीटर. ऐसे कितने बेडरूम है मेरे पास? एक है जिसका 3.5 है और 4 मीटर है. अगेन न्यू वर्ड इट हैज बीन सेम. ठीक है. सबके लिए वैसे ही लाएगा. तो ये कितना आएगा बताओ? 14. 14. 14. ठीक है. वैसे लिविंग रूम LIVING लिविंग रूम का लेंथ कितना है? 4 मीटर. वेट कितना है लिविंग रूम का? लिविंग रूम का वेट कितना है? 3.5 मीटर. ऐसे कितने लिविंग रूम है? एक है. इसका लेंथ 4 मीटर्स है. वेट कितना है? 3.5. कितना आएगा बताओ? 14. 4. अगेन इसका भी सेपरेट क्वांटिटी निकाल लो एडिशन करके. ये कितना आएगा? 40 स्क्वायर मीटर फॉर स्लैब. ठीक है. तो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द क्वांटिटी ऑफ स्लैब आल्सो. ठीक है. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. दिस इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ स्लैब. ठीक है. इंटरनल प्लास्टर फॉर स्लैब एंड इंटरनल प्लास्टर फॉर वॉल. ठीक है. यहाँ पे ये दोनों ऐड भी कर सकते हैं आप. 123.68 प्लस 40 द फाइनल क्वांटिटी. अगर दोनों एक साथ पूछता है या फिर अलग अलग पूछता है तो 40 इज द क्वांटिटी ऑफ स्लैब इंटरनल प्लास्टर इन केस ऑफ स्लैब एंड 123.68 इज द इंटरनल प्लास्टर फॉर वॉल. ठीक है. तो ये आज के कंसेप्ट यहाँ पे टेकन केयर. इन विच वी हैव calculated the quantity of RCC slab and we have calculated the quantity of internal plaster in walls as well as bottom of slab, as well as bottom of slab, as well as bottom of slab, internal plaster for bottom of the slab. ठीक है. समझ में आया ये चीज आज के लेक्चर में? ठीक. यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सारे क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए. टीचर पॉइंट ऑफ व्यू में ऑल दीज क्वांटिटीज आर यूज टू फाइंड आउट द फाइनल क्वांटिटी. जो फाइनल जो रहेगा ना आपका, जो भी क्वांटिटी निकालेंगे आप, जैसा एस्टिमेटिंग करना है. एस्टिमेटिंग मतलब बिल्डिंग का एस्टिमेट करना है. तो ये सारे इंडिविजुअल क्लब होके फाइनल क्वांटिटी वी विल फाइंड आउट द फाइनल क्वांटिटी. ठीक है. ये इंडिविजुअल क्लब होते जाएंगे. ठीक है. तो आपने पिछले बार में जितने देखे थे वो भी हो गया. प्लस आज के इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव टेकन एज द आरसीसी स्लैब एंड द इंटरनल प्लास्टर फॉर walls and slab. ठीक है. अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल हैव स्लैब भी देखेंगे और एक्स्ट्रा वी विल हैव द एक्सटर्नल प्लास्टर. अब एक्सटर्नल प्लास्टर हो जाएगा तो आपका क्वांटिटी नियर अबाउट ऑल कंप्लीट हो जाएंगी. और इसमें फिर अगर पेंटिंग होता है तो पेंटिंग भी स्क्वायर मीटर में होता है और जितना प्लास्टर होगा उतना पेंटिंग हो जाएगा. ठीक है ना. तो सेम प्लास्टरिंग क्वांटिटी विल बी टेकन एज पेंटिंग. ठीक है. तो पेंटिंग अलग से नहीं रहेगा. तो जितना प्लास्टरिंग होगा एक्सटर्नल वॉल्स पे तो एक्सटर्नल पेंटिंग हो जाएगा. इंटरनल वॉल्स पे जितना प्लास्टर होगा तो इंटरनल पेंटिंग हो जाएगा वो. ठीक है. तो ऐसा मतलब सेम वे में नियर अबाउट इट विल हैव. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल हैव द क्वांटिटी ऑफ एक्सटर्नल. ठीक है. तो नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा इसका टाइम टेबल
So next lecture is also very very important, dealing with the external plaster. ठीक है, एक्सटर्नल प्लास्टर अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. अटेंडेंस लेता हूँ 2 मिनट, वेट सेकेंड, have the attendance.